knowledge more. That's why I have joined, to put that extra thing. It's Okay. helpful for me and for others also, ma'am. Great, great. Hmm. So you are from Bhubaneswar. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you for the introduction. Next, who would like to come for the introduction? Yes, Shruti ji. Yeah, hi. My name is Shruti Dutt and I'm from New Delhi. And I've always been mesmerized by colors and color therapy. And I've also done Kundalini yoga, like the chakra systems. And I've also tried to follow a bit of color therapy, whatever knowledge I have in my own life. So I just wanted to know more about it. Hi, Richa. I've stayed in Bhubaneswar as a kid. I've studied in St. Joseph's Convent. Nice to connect. Wow. I've been from there. Nice meeting you. Thank you. Same here. थैंक यू श्रुति जी एंड आपको एक फ्रेंड भी मिल गए गोल है दुनिया गोल है Really, it's a small world. हाँ चलो नेक्स्ट who would like to come for introduction anyone hello yes yeah hi I'm Gagan Kaur Tutral. Unfortunately my video is not turning on in this phone. No. I run a training institute of acutherapy by the name of Care Heal Humanity Institute in New Delhi. Okay. Basically, I'm into acupressure and it is a contactless thing. And now we are teaching acupressure using magnets, colors, and seeds. So I know color therapy, but this was something different. So I just wanted to understand what other aspects can we do with color therapy जो आपने curriculum दिया था, so it was quite different. So मुझे मतलब है थोड़ा सा healing की तरफ a little bent, although I have been a teacher for 10 years, but इसमें मैं इसलिए आई क्योंकि मेरे को ना अच्छा लगता है ऐसी चीजें सीखना. Also I have done pranic healing part level 1 and level 2, although not practicing. And I'm more into treatment and training of these sciences. Okay, great. Why don't you open your video and see your face? Actually, my phone video is not working. If I log in from the like laptop, then the video works. Something is wrong with my phone settings. So I'll try to. Gagan, you're from Saket? Next, yes, Saket, yes. I'm very close to you. Welcome and meet you. Okay. Thank you, Neeta, for letting us be a part of this workshop. And thank you for wonderful introduction. Actually, I understand that you are into healing and so many other therapies also you are already using. So with acupressure, we are having Shiastu also, which is something very similar, but Japanese art. Yeah. So, and even you have already used color therapy in healing? हाँ जी बहुत color therapy तो हम बहुत use करते हैं. It's very effective. Okay, great. So you are already into it and you are doing, so you know the result of it. Today actually we are going into very, very basic things, starting from the definition. But of course, once the course progress, you'll understand how actually we could use this in different formats. And not only for the healing, actually there are several other aspects of color therapy. Even I got people who do color therapy workshop who are into digital marketing purpose. So in digital marketing, actually to understand the psychology of people, which kind of color will suit with which background and all this kind of aspect, if they would like to learn, actually they also do color therapy workshops. Then people who are into image consulting and all, those who are actually suggesting some kind of celebrities and all, no, even those do color therapy. Even architect and all, those who would like to actually design, decorate home decor and all, so even they do color therapy. So actually it's
complementary therapy. But yeah, there are several other professions also for whom actually color therapy is very, very useful. And nowadays, actually, it's very effective. People are moving from the whatever regular kind of allopathy to this kind of alternative medicine, because we know the side effect of all these medicines and all. So I hope you all will benefited from this particular therapy, because it's not only for the patients but for the good people also, for well-being and wellness purpose also we can use color therapy. So thank you very much. So very, Yeah. very beneficial actually, Dr. Neeta. We always tell our people that whatever color they are attracted to, that means the energy related to that color is less in their body. Yeah. So once they start applying that color, तो energy balance ही करना है. क्योंकि आपका curriculum बहुत different था, so that is why I've joined your course and it's going on very. ओके ओके, तो अभी आपने 3-4 चैप्टर जो भी देखे हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा. होपफुली आगे आने वाले लेसन्स में आपको और कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा. थैंक यू. Thank you for your introduction. Next, would like to come for the introduction round. कोई और इंट्रोड्यूस करना चाहता है अपने आप को? Yes, ma'am. I am Parul Chofla. I am currently located in Pune. I am a clinical psychologist. Since 10 years, I am working with kids and like depressive clients and a lot of psychological issues who are suffering from psychological issues and psychiatric problems. So I do counseling and psychotherapy with them, and I am using colors with the kids, and I have used with even depressive patients also, and it gave me a very good result also. Like they came up with lots of emotions and everything. Okay, great. So Parul, you are from Pune. I'm also from Pune. Yes, I just currently shifted to Pune for. I'm born and brought up from Pune only. For Okay. after marriage, 7 years I was in Vadodara. Now I shifted to Pune because of my husband's job. Okay, so which part of city do you stay in Pune? I PCMC. Pimpri Chinchwad. Yeah, it's opposite to like it's nearby Mega Mart, opposite to Atlas Capco and Sandvik Company. Oh, Sandvik. Okay. So we are located in Pimples Wadagar. Our office is in Pimples Wadagar. So you may visit sometime to our office. Yes, ma'am. I'll visit. Okay. Thank you for your wonderful introduction. And you are already using some color therapy for kids and also great to know this. Okay. Thank you very much, Parul ji. Next would like to come. Good evening, ma'am. Yes, good evening. I'm Meena from Bangalore, and I'm working as an assistant secretary in the government sector. And it is a new concept for me. This color therapy is also usable. This is a very, very new concept for me. That's why I joined, and really I'm getting benefit also. So thank you very much. Thank you very much. थैंक यू मीना जी, सो स्वीट ऑफ यू. तो आपको ये नया लगा इसलिए आपने ज्वाइन किया, एंड होपफुली बहुत सारे फायदे होंगे, आप और आपके परिवार के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको. थैंक यू मीना जी. ओके, नेक्स्ट वुड लाइक टू कम. अभी तक सिर्फ 9 लोग ज्वाइन हुए हैं. So let's start. If at all anyone wants to introduce. Yes, Bhavna ji, you would like to introduce yourself? Yes, hi ma'am. Hello, you're traveling? Yeah, I'm Bhavna from Thane. And मैंने क्यों सोचा कि कलर थेरेपी करना है, because there are many things in our daily life जहाँ हर जगह पे हमें कुछ ना कुछ जरूरत रहती है कलर चेंजेस की. हेल्थ वाइज बोलो क्या मूड वाइज बोले कुछ भी बोले तो कलर की बहुत ही जरूरत रहती है. एंड आई एम अ रेकी मास्टर, हीलिंग मास्टर. तो हीलिंग रेकी करने के बाद भी मुझे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है. तो वो कमी पूरी करने के लिए मैंने ये ज्वाइन किया है. एंड इट इज वेरी नाइस टू हियर यू इन द ऑडियो. Your speech is also very good. We can understand each and everything very well.
Thank you. So Thank thank you you, so ma'am, and it is really good for us that we have joined your lectures. Thank you so much. So sweet of Yeah. भावना जी, आप Yes. तो ऑलरेडी रेकी ग्रैंड मास्टर हो, तो आपसे भी कभी हमें सीखने का मौका मिल जाएगा एंड होपफुली हम कनेक्ट Sure, करेंगे. sure. सभी जो हीलर्स Yeah, हैं yeah. एक्चुअली हम सारे ही लोगों से कनेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं पे हम एसोसिएट हो सकते हैं एंड वी मे हेल्प ईच अदर एंड Yes. वी मे एक्चुअली क्रिएट सम गुड एसोसिएशन, है ना. Yes. मतलब Yes. ऐसा नहीं कि सिर्फ इस कोर्स के लिए आए हैं, लेकिन हाँ. बहुत सारी Ma'am, चीजें we हम have साथ में कर something सकते called spiritual tablets, हैं. where no medicines are given in our movement. It's a non-medicine concept. Okay. We cure people from the root cause. We guide them through books, we guide them through meditation. So that is the way of healing, very different. But believe me, without medicines, you can be cured from the root cause, ma'am. This is spiritual Yes. tablets, and it is from a doctor itself, Dr. Yes. GK. He is a very known doctor in UK and in India. So he has concise it, and ma'am, basically, ma'am. So yes, we don't need medicines, ma'am. Okay, great to know. So thank you very much, भावना जी. और कुछ कहना Yes. चाहते हो? नहीं, और मैडम ये बोलना है कि ये सब अच्छा है, हम सब कहाँ बैठे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, हाँ ना. लेकिन see know how we are meeting each other with all the good concepts. करेक्ट. एक्चुअली पैंडेमिक ने ये एक अच्छा भी कर दिया है कहीं ना कहीं, Yes. कि अभी हमें आदत भी पड़ गई है कि हम कहीं से भी किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं. पहले लोगों को एक ब्लॉकेज था कि ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, डिजिटली तो हाँ. होगा ही नहीं, आमने सामने बैठ के ही होता है. बहुत सारे लोग, मुझे पता है, अभी व्हाट्सएप पे मेरे क्लासेस तो पिछले 3-4 साल से चल रहे हैं, 5 साल हुए हैं लगभग हमें अभी. तो पहले तो लोगों का यही था कि व्हाट्सएप पे कैसे सीखते हैं, ऑनलाइन कैसे होता है, हाँ, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसे ही बोलते थे, हो ही नहीं सकता. बट नाउ कहीं ना कहीं फिर लोगों को अभी वो एक अवेयरनेस आ गया है और थोड़ा सा एक्सेप्टेंस भी आ गया है. तो ठीक है, कहीं कुछ ना कुछ होता है तो बुरा होता है तो अच्छा भी हो ही जाता है ना. हाँ, और कहीं से भी हम लोग सीख सकते हैं, नहीं समझो ना, हम इधर है तो पूना में आना इतना, इट इज नॉट इजी फॉर अस जस्ट टू लर्न, because we have family, maybe we have health problems also, लेकिन ये ऑनलाइन की वजह से हम कौन से भी कोने में बैठ के किधर भी सीख सकते हैं. ट्रू, वेरी ट्रू. Yes. थैंक यू मैम. अभी हम स्टार्ट Yes, करते thank you. हैं. Yes, yes. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, so now it's almost 6:20. So let's move on to our today's topic. Now, color therapy, hopefully for whatever like 3 sessions we have already done with, you might have got the idea कि किस तरह से actually colors को हमें use करना है ना. अभी तक अगर वहां तक पहुंचे भी नहीं है, फिर भी you might have understood कि अच्छा जो alternative थेरेपीज है या फिर हीलिंग टेक्निक्स है वो किस तरह से काम करते हैं. कहीं ना कहीं दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मींस वाइब्रेशंस है. अब ये वाइब्रेशंस जो है, कलर को भी वाइब्रेशन है, साउंड को भी वाइब्रेशन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लाइट को भी कुछ वाइब्रेशंस है, तो फिर स्मेल, जो हम 5 हमारे जो सेंसेस है उसके थ्रू कहीं ना कहीं हम चीजों को सेंस करते हैं. Now, of course, what is the use of these colors is you must be knowing the energy chakras. So whatever 7 major chakras are there and whatever 7 bodies are there, means जो हमारा aura है, aura and chakra के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हमारा स्पेशली aura and chakra के ऊपर एक अलग से वर्कशॉप है जहाँ पे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑरिक बॉडीज कौन कौन सी है, ऑरा में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, उसमें फिर उसका अगर ऑरा हीलिंग करना है तो ऑरा फ्रैक्चर है या फिर ऑरा में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हील करना है, उसकी पूरी थेरेपी है अलग से. चक्रा अगर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है, ब्लॉक है, तो उसको कैसे हील करना है वो भी हमारा एक अलग से कोर्स है. तो यहाँ पे हम उसके बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट यू ऑल आर इनटू हीलिंग एंड यू ऑल नो अदर थेरेपीज, सो you must be aware. I'm considering कि you must be aware of it. If at all you are not aware about it, so we may connect, because आज का फिर वो टॉपिक जो है उससे थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो जाएंगे अगर हम उसके बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे. होपफुली हमारा आज का जो प्रेजेंटेशन है उसमें ये सारी चीजें कवर होगी. एट द एंड पूरा जो ऑरिक बॉडी एंड सारे अलग अलग हमारे पार्ट्स है ना ऑरिक बॉडी के एंड ऑल, तो वो मैंने कवर करने की कोशिश की है प्रेजेंटेशन में. बट बिफोर दैट आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू कि व्हाट आर ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू see within today's class.
So of course, up till now, 3 lessons we have covered. So we are not going to cover all 3 lessons, but I'll try at the most जितना possible होता है उतना हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. अब अगर बात आती है कि कलर्स को किस तरह से यूज करना है, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हम आंखों से देख रहे हैं, उसके बाद हम स्किन से भी हम सेंस कर सकते हैं कलर को. अभी जो लोगों को नहीं दिखता है वो लोग भी एक्चुअली कलर्स के वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं, या फिर जो देखने वाले लोग हैं वो भी कलर्स के वाइब्रेशन मतलब सिर्फ टच करके भी उनको पता चल सकता है कि ये कौन सा कलर है. इवन कुछ लोगों के सेंसेस तो इतने ज्यादा डेवलप होते हैं कि वो पर्टिकुलर साउंड भी फील करते हैं कलर्स के साथ, एंड दैट्स हाउ दे आइडेंटिफाई. इवन जो थर्ड आई वगैरह ये सारे जो कंसेप्ट है, अगर आपने वो सब अगर किया तो उसके बाद इवन छोटे बच्चों के लिए भी हम जो करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आंखों में पट्टी अगर डाल दी तो भी वो पहचान सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कलर कौन सा है. तो ये क्या लॉजिक है इसके पीछे कि कैसे क्या पता चलता है. तो ऑफ कोर्स once we understand the different vibration in this energy, actually we could feel it. But even though we are not aware of it, even though we don't actually listen some kind of sounds, we could not understand after touching which color this is, but yeah, there are our senses, our subconscious mind is actually aware of all these vibrations, and whatever different energy centers are there, actually they catch all these kind of things, and through that automatically healing happens. So for that conscious awareness is not that much required. Now, what is the basic difference between the traditional medical whatever system is there and whatever pharmacy system is there, and they are actually healing people through medicine? What they do, they actually look at the patient as a person who is deceased person, and actually they take that disease as a war, and whatever disease has developed, actually they just try to cure it by fighting with that disease. Now it is something which is a fight against that particular disease. But here, when you actually consider any kind of alternative healing therapy, there we don't consider, first we don't consider patient as a deceased person, we consider them as a client or as a companion, those who are just a human being like us, and okay, there may be some problem, but we don't exactly know why that problem is, so we don't consider them and that problem as that problem only, because it might have the actually come or arise through some another reason. अगर समझो हाथ में दर्द है तो वो हाथ का दर्द कहीं और से आ सकता है, पैर में दर्द है वो भी कहीं और से आ सकता है, तो पता नहीं कि वहां पे क्यों पेन हो रहा है. कुछ थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि जिसकी वजह से वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. तो एग्जैक्टली when we actually treat that particular person, so that is the overall personality who is a combination of mind, body and spirit. So we don't consider, in alternate therapies, we don't consider a person with a specific kind of problem which we have to treat with a certain kind of medicine. No, we consider the person as a whole, body, mind, soul, and overall we have to consider their mental status, actually what is their mindset at that moment of time. Maybe it has occurred, whatever problem actually they can see in their body through some kind of pain, might be the cause, might be the reason, must be some different kind of thing, and because of that kind of thought process, that particular thing might have arisen. So we consider first the person as a client to whom we understand as a human being first, and we'll try to understand them as a person, not as a patient. And that's how, once we understand what kind of phase actually in their life they are going through, and once we understand that particular mindset, currently what kind of mindset that person is having, so it may happen that by curing something else, you may cure the whatever root cause of that particular disease may be. So this may be possible with the help of these alternative therapies. Now, of course, there are several other kind of therapies, not only this color therapy, but yeah, there are several like aromatherapy is there, which is
through aroma of different oils. Actually, we treat patients. Music therapy is there, sound therapy is there, and then again flower therapy. You must be knowing within flower therapy we are having bark flower remedies. Now bark flower remedies, of course there are 38 remedies, but after that we are having advanced flower remedy. In advanced flower remedies we are having many flowers, Australian flowers, Californian flowers. So there are several different other flowers, and with the help of which actually we could cure. Now we need to understand what exactly is the problem. Based on that problem, we'll understand what kind of thought process it may be and what kind of problem may be there in that person's life, and accordingly we may suggest certain kind of flower therapies, remedies to them. So these are the different kind of therapies, remedies we use as an alternative to medicines. So it's not like always we required some medicine when we got something goes wrong. At that, rescue remedy is very useful. Yes, yes. So yeah, of course there are several other remedies, but yeah, color therapies goes along with all these remedies side by side also. Now, of course, it's not a complete kind of system. Means ऐसे नहीं कि particular patient को आप patient करके treat करो और पूरा का पूरा उनका color therapy से ही हो जाएगा. इसका 100% guarantee नहीं है. But yeah, it may be used as a complementary therapy. Complementary therapy का मतलब क्या है कि साथ में उनको proper diet लेना पड़ेगा. उनका जो दिनचर्या है, उनकी जो lifestyle है, उसमें थोड़े से बदलाव लाने पड़ेंगे. So proper diet and all these kind of things, and along with that, if you add up this color therapy, so it will add value. So this is how actually we use it as a complementary therapy maximum time. But yeah, color vibrations are very, very effective, and even in very big diseases in the sense which takes a lot of efforts and time to cure, within that also color therapy is very, very useful. So let's begin with our today's presentation. I'll share my screen. Just let me understand whether you all can see it or not. मेरा screen सबको दिखाई दे रहा है? It's visible? Yes, ma'am. दिख रहा है ना? Okay. Okay, thank you. Okay, so why color therapy? So of course we need to understand first कि क्या जरूरत है color therapy सीखने की. तो यहाँ पे जो ये benefits है, it's for the wholeness and perfect health of the person. तो उसके लिए हम generally color therapy का prefer करते हैं. एंड जो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी है, जो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एनकरेज करने के लिए अभी देखो बहुत बार क्या होता है, आपका एक डेली रूटीन देखो, उस रूटीन में आपने अगर बिल्कुल पुराने डल कपड़े अगर पहने, एंड उस दिन आपका जो एनर्जी है, आपका जो फीलिंग है वो कैसा रहेगा. एंड जिस दिन आप बहुत अच्छे एकदम शानदार कपड़े पहनते हो, बिल्कुल एकदम ब्राइट कलर्स के, एंड सब लोग आपको बोलते हैं वाह आज आप कितने अच्छे दिख रहे हो, तो उस दिन का आपका जो मूड है या फिर आपका जो माइंडसेट है उसको अगर आप गौर करोगे तो यू माइट फाइंड द डिफरेंस कि अच्छा हाँ उस दिन मुझे सबने बोला कि मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली आई फील मोटिवेटेड, आई फील मोर प्रोडक्टिव as compared to other days. And at the home, whenever we are with a certain kind of colors, with the dull colors, or maybe which is not that much fruitful or very pleasant at that moment of time, what kind of mindset we are having. So yeah, if at all you would like to understand this, you may just remember and try to find out whether you find some kind of difference. So yeah, of course there is a lot of difference if you are wearing some bright in the sense कि pleasant, जो आंखों को बहुत अच्छे लगते, चुभते नहीं है, एंड उस दिन आपका जो एनर्जी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं वो अगर मैच होता है तो ऑटोमेटिकली आपके जो एनर्जी वाइब्रेशंस है वो थोड़ा सा चेंज होने लग जाते हैं. एंड कभी अगर मतलब हर कलर के लिए एक पर्टिकुलर इमोशंस भी अटैच होता है, तो उस इमोशन के अगर जरूरत है आपको, समझो अभी
सम ग्रीन कलर जो है वो प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। तो इफ यू फील कि ओके आई नीड प्रॉस्पेरिटी इन माय लाइफ, आई नीड लॉट ऑफ एबंडेंस इन माय लाइफ, at that moment of time automatically if that kind of feeling you'll have, no, automatically you start liking that color. ऐसे होता है, देखो अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, एक सर्टेन पीरियड पे आप सर्टेन टाइप के कपड़े सिलेक्ट करते हो, या फिर आप कुछ चीजों को सिलेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आप सर्टेन टाइप के कलर्स को चूज करते हो, होता है। अगर आपने गौर नहीं किया होगा तो नाउ ट्राई टू जस्ट observe yourself, and at that moment of time actually why you are selecting that particular color, because now that kind of energy is required and that's why you are attracting that kind of energy. It happens, okay, it happens, and that's how actually it deals and it's connected with us. So yeah, these are few of the reasons for which we should understand color therapy. So for this reason color therapists like to refer to the people एंड हाँ, मैंने ऑलरेडी ये बताया है कि आपको पेशेंट नहीं, उसको उनको एज अ क्लाइंट ट्रीट करना है। अब उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, तो क्या क्या बेनिफिट्स है, जैसे एनर्जीज को बैलेंस करता है, क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, लर्निंग को एनहांस करता है, ब्लॉक्स रिलीज करने में हेल्प करता है, देन अपना जो फिजिकल वेलबींग है उसको एलिविएट करता है, इमोशनल एंड मेंटल कंडीशंस को ठीक करने में कलर थेरेपी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये सारी चीजों की वजह से एक्चुअली हमें कलर थेरेपी सीखना चाहिए। देन कलर थेरेपी से हम बहुत सारी चीजें लाइक अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे उनके जो स्पेसिफिक नीड्स है इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके थ्रू हम हीलिंग कर सकते हैं, रिलैक्सेशन, इंस्पिरेशन, प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें जो है ये भी पॉसिबल है कलर थेरेपी के माध्यम से। सो दीज आर फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कलर थेरेपी। नाउ वी आर गोइंग इनटू डिटेल, सो थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि ये काफी बेसिक चीजें हैं, आप सभी को पता होंगी। तो ऑफ कोर्स कलर अगर हम इसको कंप्लीट देखते हैं तो C फॉर काम, O फॉर ऑप्टिमिज्म, L फॉर लव, U फॉर यूनिक एंड R फॉर रिलैक्स। सो calm, optimism, love, unique and relax, this is what is the complete sentence, long form of color, and that's why actually colors are required in our the life. So if we'll see the scientific definition of color, so of course it's a quality of an object or substance with respect to light reflected by the object, usually determined visually by measurement of hue, saturation and brightness of reflected light, saturation और chroma hue। तो ऐसी चीज जिसे हम एक ब्राइटनेस के बेसिस पे किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, लाइट का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसके बेसिस पे मेजर कर सकते हैं, उन सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल हम उसे एक कलर कह के बोल सकते हैं। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन हुआ कलर का। सिंपली अगर हमें देखना है तो इट हैज बीन नोन फॉर एजेस ऑफ टाइम that color plays a major role in setting up a particular mood or state of mind, and color does affect one's feelings, moods and emotions। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कलर के इफेक्ट बताए हैं कि एग्जैक्टली आपके मूड्स, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स को अगर आपको बूस्ट अप करना है या फिर उसको उसमें चेंज लाने की कोशिश करनी होता है ना, कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में किसी टाइम पे हम चले जाते हैं, या फिर ऐसे हो जाता है कि लाइफ में मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है कि कुछ रॉन्ग हो गया, अब उससे उभर कर फिर से लाइफ जो रूटीन है वहां पे आना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ जो होता है एक फेज लाइफ की, जैसे कुछ भी चेंज हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मदरहुड के टाइम पे बहुत सारे लेडीज के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जहाँ पे लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, तो वहां पे सेटल्ड होना बहुत लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइप के जो स्विचिंग वाले स्टेजेस होते हैं, इवन किसी ने मतलब हाउसवाइफ है, जॉब चालू कर दिया, लाइफ में चेंज आ गया तो यहाँ पे सेटल होने में प्रॉब्लम हो रहा है, एक पर्टिकुलर जॉब में है, प्रमोशन हो गया, अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने के बाद जो डिफिकल्टीज आ रहे हैं उसके साथ, तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं, स्टेजेस लाइफ में आते हैं, तो उसमें स्विच ऑन स्विच ऑफ मीन्स फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, when we find it very difficult at that moment of time, color may help us to actually adjust with all these kind of imbalances. So this is what is a definition of color. And if we'll see color therapy, what exactly color therapy is, it helps to balance the frequencies of malfunctioning cells and bounce back to a
नेचुरल स्टेट्स ऑफ रेडिएंट वेलबींग। तो मतलब क्या है कि कलर के वाइब्रेशंस से जो भी इम्बैलेंस हो रहा है, अब इम्बैलेंस वाइब्रेशंस के थ्रू हो रहा है, एनर्जीज में हो रहा है। तो जो 7 चक्रास की मैंने बात की है, जहां पे हर चक्रा को, जो 7 चक्रा है, हर चक्रा जो है वो स्पेसिफिक कलर रिप्रेजेंट करता है। तो उस टाइम पे जहां पे ब्लॉकेज है, जहां पे प्रॉब्लम है, जहां पे कहीं ना कहीं जरूरत है कि उसका ब्लॉकेज हट जाए और वो जो है वो रेगुलेट हो जाए, तो वो दैट इज व्हाट इज इम्बैलेंस। हो सकता है ऑरा में कहीं पे प्रॉब्लम है, तो ऑरा कहीं पे फ्रैक्चर है, या फिर बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है, तो उसको हमें लाइट करना है, क्लीन करना है। तो उस टाइम पे भी अगेन अगर आपका ऑरा डार्कर कलर की साइड में जा रहा है, यानी कि निगेटिव हो रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि निगेटिव एनर्जीज जो है वो प्रभाव करें। क्या होता है, अब ये किस तरह से आता है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू थ्रू अ स्मॉल एग्जांपल। समझो आपका एक कैमरा आता है स्पेसिफिक, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है फोटोग्राफी का, किसी को पता है क्या कौन सी फोटोग्राफी कहते हैं उसे? उसमें पूरा आपका ऑरा दिखता है एक्चुअली, एंड जिसमें आपका मतलब आपके साथ आपकी जो ऑरिक बॉडी है तो उसके कलर्स रिप्रेजेंट होंगे ना। फॉर एग्जांपल आपने आपका ऑरा का जो है वो पिक्चर निकाल दिया, एंड आपको कहीं ना कहीं समझो गले के पास कुछ ऐसे लग रहा है, डार्क कलर्स एंड ऑल है। तो अभी तक मतलब समझो अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां पे कुछ डार्कर कलर्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अभी है और एक बॉडी में, प्रॉब्लम डायरेक्टली बॉडी में नहीं आता है। ये जो 7 लेयर्स है, मेंटल बॉडी, etheric body and all this kind of different auric levels are there, तो एस्ट्रिक बॉडी वगैरह सारे जो अलग अलग बॉडीज हैं, पहले जो प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नल बॉडीज में आते हैं, एंड देन फिर वो प्रॉब्लम एक्चुअली फिजिकल बॉडी में आता है। तो एक्चुअली क्या है, अगर उस पिक्चर में आपको कहीं ना कहीं डार्कर स्पॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले 3-4 सालों में हो सकता है कि आपको गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो। तो अब अगर आपने उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे ही अगर उसको क्योर करने की कोशिश की, उसको हील करने की कोशिश की, तो फिर वो जो आने वाला प्रॉब्लम है उसको आज आप क्योर कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ एनर्जी बैलेंसिंग इज सो इम्पोर्टेंट। Means there may be some kind of imbalance in a certain kind of energies, and because of that imbalance today actually you may not feel like there may be any kind of imbalance, because yet it has not get into your physical body। actually क्या होता है, भगवान ने हमारी जो बॉडी बनाई है ना, वो इतनी स्ट्रांग बनाई है, इतनी स्ट्रांग बनाई है कि जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्गन 75 to 80% तक वो डैमेज नहीं हो जाता है, तब तक वो जैसे 100% काम करता है ना, वो वैसे ही फंक्शनिंग होती है उसकी। कोई भी ऑर्गन ले लो, चाहे आप हार्ट ले लो, किडनी ले लो, लीवर ले लो, कोई भी ऑर्गन ले लो, एक्चुअली बनाया ही ऐसा है बनाने वाले ने कि उसमें अगर 80% तक जब तक मतलब वो डैमेज नहीं होता, या फिर उसमें कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, तब तक वो बिल्कुल वैसे फंक्शन करता है जैसे वो 100% अच्छा है। जब वो प्रॉब्लम 75% से ज्यादा हो जाता है कि अब सारी जिम्मेदारी जो 25% सेल्स है उनके ऊपर है, तो उस टाइम पे एक्चुअली बॉडी में कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअली ऐसा है कि अगर पता प्रीवियस, इसीलिए तो जो बड़े बड़े डिसीजेस है वो जनरली फिर थर्ड स्टेज, फोर्थ मतलब लास्ट स्टेज में समझ में आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उतना डैमेज हो चुका है। उतना डैमेज होने के बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है या फिर उसके जो इम्पैक्ट्स है वो हमारे फिजिकल बॉडी में आना शुरू होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी डोंट अंडरस्टैंड दोज प्रॉब्लम एट द वेरी अर्ली स्टेज, बट एक्चुअली द अर्ली स्टेज इज wherein it's in the aura. So that's how, if at all there is any kind of imbalances of energy and we come to know okay, there is some kind of imbalance in the energy, and at the right time if actually we could heal it at the energy level itself, then it may not convert into a particular kind of disease। फिर वो जाके disease में उसका conversion नहीं होगा, and उसको हम time पे, right time पे उसको हम cure कर सकते हैं। Okay, so this is what is about the basic definitions we have seen। So of course there are different kind of colors like orange, red, purple, green, blue, brown, violet, black and white, जैसे रेनबो के कलर्स होते हैं। अब थोड़ा सा अगर हिस्ट्री देखते हैं हम कलर थेरेपी का,
तो ये 20th सेंचुरी से एक्चुअली आया है एग्जिस्टेंस में। एक स्विच साइकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर मैक्स लुशा करके, उन्होंने एक्चुअली कलर थेरेपी को मतलब यूज करना शुरू किया, डायग्नोस्टिक्स में उसको यूज करना शुरू कर दिया। And during the test, recipient is asked to select 8 colored bottle in the order of preferences. उन्होंने एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अच्छा ये 8 कलर के बॉटल है, आपको जो भी लगता है, मतलब कुछ लोगों को उन्होंने बोला कि आपको जो लगता है आप वो पर्टिकुलर कलर की बॉटल जो है आपको चूज करनी है। देन क्या हुआ, द रिजल्ट सेट्स टू रिवील योर वरीज एंड देयर सॉल्यूशन। फिर उन्होंने क्या किया कि उनके जिन्होंने जो कलर चूज किया है एक्चुअली उनको उसी कलर की एनर्जी की उस टाइम पर रिक्वायरमेंट थी, उसी टाइप के उनके प्रॉब्लम थे, उसकी वजह से एक्चुअली वो पर्टिकुलर कलर को चूज कर रहे थे। तो उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था एंड उसके बाद फिर उन्होंने उनको सॉल्यूशंस देना शुरू कर दिया। देन अभी देखते हैं कि क्रोमोथेरेपी, ये हुआ हिस्ट्री के बारे में। तो अभी क्रोमोथेरेपी जो है यानी कि कलर थेरेपी का ही दूसरा नाम क्रोमोथेरेपी है। तो इसके मेथड्स क्या है ट्रीटमेंट के, किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इट इज बेस्ट यूज एज अ सपोर्टिव थेरेपी अलोंग विद अदर नेचुरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन। जो भी हम नेचुरल मेथड्स है जैसे करेक्ट डाइट है, एडिक्वेट रेस्ट लेना है, रिलैक्सेशन। कोई तो अभी ज्वाइन हुआ है जो म्यूट पे नहीं है, प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत। सुदीप कुमार, ओके। सो ये जो सारे है ये सारी चीजों के साथ, मतलब आप करेक्ट डाइट लेना पड़ेगा, आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना पड़ेगा, आपको रिलैक्सेशन, योगा वगैरह ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। उसके साथ आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी करके दे सकते हो। इट वॉज पॉपुलर मेथड ऑफ क्योर इवन इन एंशिएंट टाइम। पहले के जमाने में भी उसको मतलब प्रॉपर थेरेपी के फॉर्मेट में नहीं, लेकिन इसको यूज पहले से किया जा रहा है। तो ये हुआ उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा सा हिस्ट्री भी हमने जान लिया। अभी हमने ऑलरेडी कलर थेरेपी की डेफिनेशन देख लिया, अभी हम क्रोमोथेरेपी देखेंगे, वही सिमिलर है। Chromotherapy is a technique of restoring of the imbalances by means of applying different types of colors, lights to the body. तो बॉडी के हर एक पार्ट को अगर हम एक पर्टिकुलर कलर से इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर किसी भी लाइक हो सकता है कि क्लॉथ से के थ्रू दे रहे हैं, बॉटल्स या कलर्स के थ्रू दे रहे हैं, वाइब्रेशंस जो है किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, इवन स्मोक के फॉर्मेट में हो सकते हैं, लाइट्स के फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो वाइब्रेशंस हमें किस तरह से देने हैं वो अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं जो आप आने वाले चैप्टर्स में सीखने वाले हो। लेकिन हाँ, इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए ये तरीके हम यूज करते हैं। कहीं पे हम अप्लाई भी करना सीखते हैं, तो अलग अलग वे से हम उसको यूज कर सकते हैं। नाउ आज का जो सेशन है उसमें हम मेनली क्या क्या देखने वाले हैं। तो लेसन 1 में प्रिंसिपल्स ऑफ कलर दिए हुए हैं, इफेक्ट ऑफ कलर ऑन अस दिया हुआ है, फिलोसॉफी दिया है एंड सटल बॉडीज एंड फिजिकल बॉडीज दिया है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 क्वेश्चन आंसर, यही हमारा आज का गोल है। अब मेजर जो प्रिंसिपल्स है कलर के, कलर थेरेपी के, वो क्या क्या है। तो कलर थेरेपी इज अ सटल नॉन इन्वेसिव थेरेपी मेकिंग यूज ऑफ हीलिंग एनर्जी कंटेंट विद इन द विजिबल रेज ऑफ कलर। तो ऐसी थेरेपी जो इनविजिबल रेज जो है कलर्स के, उसके थ्रू कहीं ना कहीं एनर्जी इम्बैलेंस को बैलेंस करती है, उसके थ्रू जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके उसके जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जिसको डिसीज हम कह सकते हैं उसको भी हम हील कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड कलर थेरेपी। बहुत सारा यहाँ पे थ्योरी दिया हुआ है, क्या है एग्जैक्टली, मोर ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कलर थेरेपी। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमने किस तरह से एक्चुअली अलग अलग एनर्जी सेंटर्स को स्टिमुलेट करना है, इम्बैलेंस जहाँ पे है वहां पे बैलेंस करना है, तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू, ये मेजर प्रिंसिपल है कलर थेरेपी का। ये बहुत ज्यादा ये लिखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स हमारा जो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट है उसमें बैलेंस लाने के लिए हम यूज कर रहे हैं कलर थेरेपी। Okay, now we will read out this. थोड़ा सा elaborate करेंगे। Color therapy encourages us to take personal responsibility of life and to use the healing power within ourselves. हमारे अंदर एक्चुअली बहुत सारे पावर्स हैं, बहुत ज्यादा, मतलब मैजिकल पावर्स हैं। अब उन मैजिकल पावर्स को यूटिलाइज करना हर किसी को नहीं आता, इसलिए हर कोई इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। बट अगर हम उसको एटलीस्ट
स्टिमुलेट कर पाए एंड कहीं ना कहीं पे उसको हम यूज कर पाए, तो हम हमारे लाइफ में आज जो भी है उससे हम बहुत कुछ ज्यादा कर सकते हैं। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हम जो भी आज अचीव कर रहे हैं उससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो ये एनकरेज करता है, ये एक ऐसी थेरेपी है जहाँ पे हम स्टिमुलेशन एंड एनर्जी बैलेंसेस एंड ऑल ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कलर थेरेपी का। Then a color therapist can use colors to balance energy, aids creativity and learning, release blockage, ये हमने देख लिया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कलर थेरेपी से हम उसके एडवांटेजेस हैं। क्रिएटिविटी जो चीज है, यानी कि इनोवेशन जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली अभी फिलहाल तो भी ऐसे है कि ऐसी एजुकेशन सिस्टम है या फिर ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी लूज होती जा रही है। अब इसको इग्नाइट करने के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी? मीन समथिंग ओरिजिनल व्हिच इज नॉट कॉपीड फ्रॉम समवेयर एल्स, but what happens is because nowadays things have become very easy and we are overwhelmed with the lot of information platforms and things are bombarding actually. Because of this overwhelming, what is original, that has loosed, and we are just coming up with the different versions of whatever other people are doing, and we are just listening to them, and we are actually not remembering, or we have forgotten our own capability that yeah, we can think originally and we may have our own original thoughts which may be shared with others, and that's how actually we are not using our own creativity, our own original ideas. But yeah, color therapy is one of the way through which you can elevate that creativity, that innovative ideas may generate in your mind with the help of stimulating different kind of colors. So yeah, these are the different kind of principles of color therapy and benefits of color therapy we have seen. Okay, now how color therapy is used as a complementary therapy, and what are all diseases actually we can cure with the help of color therapy. So yeah, of course, in Asia, Europe, America, this particular therapy is used for physical, emotional and mental problems. So some problems are given over here: asthma hai, arthritis hai, nervous and mental disorders, depression, eating disorders, skin disorders, digestive ailments, blood and circulation related problems, then fever, rheumatism, shock for the relief of pain, and as the part of treatment of many other serious illnesses such as paralysis, multiple sclerosis, then cancer, AIDS. So ये सारे जो डिसीज है, इवन लेप्रेसी में भी कलर थेरेपी के बैंडेज एंड ऑल उसके कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग डिसीजेस हैं जहाँ पे हम कलर थेरेपी का यूज करते हैं। तो ये मेजर डिसीजेस या प्रॉब्लम्स है जिसमें कलर थेरेपी को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी यूज किया जा सकता है। अब कलर थेरेपी से जो रिकवरी हो रही है वो कैसी है या फिर किस तरह से होता है? तो अभी एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी यहाँ पे दिया हुआ है आपके लेसन नंबर 1 में। एक गर्ल थी जिनका बहुत ज्यादा वो बर्न हो चुकी थी एंड बिल्कुल 3rd डिग्री का उनका पूरा जो स्कार्स था, जो भी उनके बॉडी में बर्न हुए थे, वो बहुत हाई लेवल के थे। अब उन्होंने क्या किया, वही ट्रीटमेंट जो सारे पेशेंट्स को मिलती है उसी टाइप के ट्रीटमेंट उनको दी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कलर चेंज किया। उनका जो वार्ड था, उनका जहाँ पे उनको रखा गया था, वहां पे उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन चेंज किए रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड चेक किया कि रिकवरी जो हो रही है वो कैसी हो रही। तो जो केस स्टडी है, मतलब जहाँ पे उन्होंने डिफरेंशिएट किया, तो एज कंपेयर टू अदर, मतलब जो रेगुलर कलर है या फिर जैसे वार्ड है, and apart from that she was actually into some different ward wherein they have uses different kind of color therapies, means जो डेकोरेशन एंड ऑल है उनको उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। तो एक्चुअली जो रिजल्ट मिला वो बहुत अच्छा था। मीन्स उनके जो रिकवरी हुई वो बहुत फास्ट तो हुई, बट एक्चुअली जो लेवल था, मतलब कितना रिकवर हो सकता है, कितने स्कार्स आ सकते हैं, तो वो जो लेवल था अब तक का जो रेगुलर मेडिसिन करती है, वो लेवल भी उन्होंने क्रॉस करके वो बहुत अच्छे लेवल पे रिकवर हो चुके थे। तो काफी अच्छे से हीलिंग हुआ। तो वो जो डिफरेंशिएशन था कि एक रेगुलर पेशेंट को एक वार्ड के अंदर जिस तरह की ट्रीटमेंट हुई, सेम ट्रीटमेंट उनको भी हुई, लेकिन वहां पे सिर्फ एडिशनल क्या किया, तो जो कलर एनर्जीज है वो चेंज किए एंड वहां पे डिफरेंट अभी, और ये वाला जो सिस्टम है
बहुत सारे मेडिकल जो हॉस्पिटल्स के अरेंजमेंट्स है वहाँ पे बहुत सारी जगह पे ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, एंड वो चेंजेस भी उनको दिख रहे हैं कि किस तरह से चेंज होता है। इवन जहाँ पे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की जहाँ पे ट्रीटमेंट होती है, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा कलर थेरेपी का वो यूज करते हैं कि जिससे रिकवरी जो है वो फास्टर हो जाए। इवन जहाँ पे आपके घर में भी अगर कोई ऐसा है कि जहाँ पे इल पर्सन जाए और वहां पे भी अगर आपने सर्टन काइंड ऑफ चेंजेस किए आपके रूम के कलर्स में, आपके बेडशीट के कलर्स में एंड ऑल, तो वो जो वाइब्रेशंस मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को हील करने के लिए जो यूजफुल है, अगर उस टाइप के कलर्स आपने वहां पे यूज किए तो जो रिकवरी है वो उसका लेवल जो है और फास्टर हो सकता है। So this has been proved through this one case study, which was regarding burning a patient whom actually got burned in some one of the accident. तो ये रिकवरी के बारे में है कि एज कम्पेयर टू रेगुलर काइंड ऑफ थिंग, कलर थेरेपी में हेल्प अस इन फास्ट रिकवरी। अब इसके जो इफेक्ट है वो हम पे किस तरह से होते हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो एनर्जी है किस तरह से ट्रैवल होती है, तो जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है या फिर मास्टर ग्लैंड्स है या फिर एंडोक्राइन सिस्टम है, इनके थ्रू एक्चुअली ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंड पूरी जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है बॉडी के, उसको फिर ये एनर्जी जो है ये उसके वाइब्रेशंस रीच आउट होते हैं, एंड फिर हार्मोन्स में जो भी स्टिमुलेशन है यानी कि जहाँ पे भी इम्बैलेंस है, तो वो वाला जो रीच है, बोल सकते हैं कि जहाँ पे भी इम्बैलेंस है, इन ग्लैंड्स के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करके फिर वो बॉडी में स्प्रेड किया जाता है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली कलर अफेक्ट अस। तो उसका जो इफेक्ट है वो कहीं से भी आ सकता है, हम आंखों से कलर को देख सकते हैं, हम उनको वेयर कर सकते हैं, हम ऑफ कोर्स हमारा जो भी एनवायरनमेंट है उसमें उनको रख के कर सकते हैं, कुछ कलर के डिफरेंट लाइट्स यूज कर सकते हैं, तो उसका जो स्टिमुलेशन, जो एब्जॉर्प्शन है वो किसी भी वे से हो सकता है, बट एग्जैक्टली जो सिक्रीशन हो रहा है वो हमारे ग्लैंड्स कर रहे हैं, एंड वो ग्लैंड्स पर्टिकुलर हार्मोन्स को फिर अफेक्ट करते हैं। दैट्स हाउ सर्टेन काइंड ऑफ जो इम्बैलेंसेस है उसको बैलेंस करके फिर जो बॉडी का रिप्रोडक्शन सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, वो प्रॉपर्ली वर्कआउट करने लगता है, एंड देन जो इम्बैलेंस है वो थोड़े बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये सारे जो अल्टरनेटिव थेरेपीज है ना वो इमीडिएट नहीं आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि आज हमने ये कलर पहन लिया, उसका वाइब्रेशन आ गया और कल हमको इफेक्ट दिख गया। ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी से काम करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हाँ इसका जो इम्पैक्ट होता है वो मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग अल्टरनेटिव थेरेपीज है, लेकिन उसका इमीडिएट आपको रिफ्लेक्शन नहीं आता। हाँ कुछ चीजें हैं, जैसे अभी फीवर आ गया, फीवर को जल्दी से कम करना है, आप ब्लू कलर जो है उसमें हेल्प आउट करेगा। तो अपनी जो हाथों की उंगलियां, यहाँ पे अगर हमने ब्लू कलर इंक अगर अप्लाई कर दिया, तो दैट्स हाउ एक्चुअली हम टेम्परेचर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है ब्लू कलर, एंड दैट्स हाउ एक्चुअली पेशेंट का जो है इमीडिएट अगर इम्पैक्ट चाहिए तो उस टाइप के अप्लाई करके एंड ऑल हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स कुछ इमीडिएट इम्पैक्ट के लिए भी होता है, बट जब आप एज अ थेरेपिस्ट जाते हो तो आप कुछ भी उनको प्रॉमिस मत करो, मतलब इमीडिएटली हाँ आप ये कलर यूज करो एंड कल आपको हो जाएगा, इस तरह की आपको फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करने हैं। बीइंग अ थेरेपिस्ट you should understand your patient, not patient, client of course, thoroughly understand their problem, which kind of phase actually they are going through in their life, and because of that maybe that particular disease might have actually arises in their body as a disease। तो ये आपको सारा अंडरस्टैंड करने के बाद ही एक पर्टिकुलर डिसीजन पे जाना है कि उन पे आप एग्जैक्टली कौन सा थेरेपी यूज करोगे एंड किस वे से यूज करोगे, कितने उनको आपको सेशंस देने पड़ेंगे, उनको अल्टरनेट उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपको क्या क्या चीजें बतानी है। अगर हो सकता है कि आप उनको बहुत सारे सेशंस दो आपके, बट हो मतलब वो जो डाइट ले रहे हैं वो इनकरेक्ट है, जिसकी वजह से एक्चुअली जो भी आप कर रहे हो उसका असर नहीं हो रहा है, या फिर उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें इतना निगेटिविटी आ रहा है कि जिसकी वजह से एक्चुअली आपकी थेरेपी तो काम कर रही है लेकिन वो क्योर होना ही नहीं चाहते। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जो पर्सन क्योर होना चाहता है, अगर आपने उनको मेडिसिन, ये तो आपको पता ही होगा कि अगर वो मेडिसिन जो है उससे भी, उसका भी नाम नहीं याद आ रहा है, वो
उसे क्या कहते हैं, जहाँ पे हम मतलब एक्चुअल रियल मेडिसिन नहीं होता है, जस्ट कोई भी लाइक चॉकलेट दे दिया या फिर कोई मीठी शुगर की कोई गोली दे दी, एंड बस पेशेंट को आपने बताया कि ये 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, 2 दिन में आप ठीक हो जाओगे, 1 दिन में आप ठीक हो जाओगे, एंड ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे, एंड ऑटोमेटिकली देयर बॉडी स्टार्ट एक्चुअली हीलिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो पर्टिकुलर मेडिसिन अफेक्ट कर रही है, वो मेडिसिन देते टाइम पे डॉक्टर जो इंस्ट्रक्शन देता है उस इंस्ट्रक्शन से एक्चुअली हमारी बॉडी हील होने लगती है, क्योंकि हीलिंग सिस्टम अंदर है, वो बाहर नहीं है। हीलिंग सिस्टम जो पूरा है, अभी समझो एक छोटी सी चोट आपको लगी, आपने उसको कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं लगाया या फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो क्या वो हील नहीं होता? ऑफ कोर्स वो हील होता है, वो ऑटोमेटिकली हील होता है, क्योंकि एक्चुअली हीलिंग जो है वो अंदर से काम करता है। एक्सटर्नल स्टिम्युलस जो है वो सिर्फ उसको हेल्प आउट करता है हीलिंग के लिए। तो डिसीज कौन सा भी हो या फिर प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, अगर उनसे दिमाग से अगर उन्होंने बोल दिया कि अभी नहीं होगा, तो देन इट विल नॉट पॉसिबल। बट इफ दे आर रेडी टू हील, दे वांट टू लिव लॉन्गर, ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू, दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज गोइंग टू सॉल्व। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस से, आपके एनर्जी वाइब्रेशन से डील करती है। उसकी वजह से इसका जो इफेक्ट आएगा वो भी बिल्कुल मतलब आज है और कल ऐसे नहीं, थोड़ा सा टाइम लेके आएगा, लेकिन जो इम्पैक्ट होगा वो लॉन्गर टर्म के लिए होगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन colored light also causes calcium and phosphorus to be more readily utilized, and pathological blood sugar is diminished without any disturbance to normal blood sugar. अब एक्चुअली कलर लाइट के जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली आपके कैल्शियम, फॉस्फोरस, शुगर, ब्लड शुगर लेवल, इनसे भी इम्पैक्ट होता है, एंड उससे भी उसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपको समझ में आता है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द इम्पैक्ट, मतलब जो विजिबल चेंजेस है वो किस तरह से होते हैं, तो वो हमने देखे। अब हम कुछ और इफेक्ट देखते हैं। द रेड और ऑरेंज रेज प्रोड्यूस हीट। अब ये जो है थोड़े से गर्म करने वाले कलर्स है, which relieves congested conditions. The lymphatic status is reduced, causing blood vessels to dilate, resulting in increased blood supply. On the other hand, the cooling blue wavelength reduces blood pressure as the supranatal are depressed whilst the thyroid gland is stimulated. अगर आपको उस टाइम पे ब्लड वेसल्स को आपको डायलेट करना है, एनर्जी को हाई करना है, तो हीट चाहिए, तो आप रेड या फिर ऑरेंज इस टाइप के हीट प्रोड्यूस करने वाले कलर्स को आप सजेस्ट कर सकते हो। जिस टाइम पे आपको उसको स्टिमुलेट कम करना है और कूल करना है, तो उस टाइम पे आप कूलिंग वाला, जैसे ब्लू कलर है, तो आप वो सजेस्ट कर सकते हो। तो जहां पे जिस टाइप की एनर्जी की जरूरत है उस टाइप की आप कलर वाइब्रेशंस, उस टाइप की कलर एनर्जी को यूज करके आप उनको मतलब क्या बोल सकते हैं, रिकवरी में आपको कॉम्प्लीमेंट्री उसको यूज कर सकते हो। देन कलर अफेक्ट्स आवर मेंटल बॉडी टू। अब ये होगा फिजिकल बॉडी के बारे में। अब जो मेंटल बॉडी है, यहाँ पे भी कलर्स का बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। अब जैसे ब्लू कलर है, ये माइंड को काम करता है। देन येलो के कुछ शेड्स जो है वो अपनी मेंटल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने लग जाता है। The effect of colors, however, does not end when we close our eyes. ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस कलर को देख नहीं रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ऑफ कोर्स जिस टाइप का कलर वाइब्रेशंस आप मतलब जो कलर वेयर कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर एनर्जी तो आपके पास है, आपने आंखें खुली रखी या बंद करी, वो जो कलर का इम्पैक्ट जिस तरह से होना है वो होगा ही। तो ये जो है दोनों, नॉट ओनली फिजिकल बॉडी बट ऑफ कोर्स इट स्टार्ट्स विद मेंटल बॉडी फर्स्ट एंड इट इम्पैक्ट आवर मेंटल बॉडी एंड देन ग्रेजुअली इट इम्पैक्ट आवर फिजिकल बॉडी टू। तो ये है कुछ कलर्स। अब तक ऑल इज वेल? Anything you'd like to add on or you'd like to ask? कहीं किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? थोड़ा सा बहुत ज्यादा फ्लो में हो रहा है, इसलिए मैंने एक छोटा सा पॉज लिया है। आगे बढ़े? All is well? Hope you all are there. आप सब लोग हो ना? ओके ओके ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। द इफेक्ट ऑफ कलर ऑन अस। तो
तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम किस तरह से कलर्स का इफेक्ट अपने पे होता है। तो स्किन के थ्रू बॉडी के सेल्स जो है उनके थ्रू कलर का एब्जॉर्प्शन होता है। एज ऑल सेल्स आर लाइट सेंसिटिव, सो कलर वाइब्रेशन अफेक्ट देयर ग्रोथ एंड बिहेवियर, कॉजिंग फाइन बायोकेमिकल चेंजेस टेक प्लेस। Then color therapy is particularly useful as a preventative medicine. मतलब इसको हम प्रिवेंशन के लिए ज्यादा, मतलब एक बार डिसीज हो गया तो उसके बाद फिर उसको क्योर करना पड़ेगा, लेकिन हो मतलब वो हो ही ना, उसके लिए जो थेरेपीज होते हैं दैट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। तो कलर थेरेपी को हम बहुत अच्छा प्रिवेंशन के लिए हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब और उसके कुछ एडवांटेजेस है किस तरह से इफेक्ट करता है। तो कलर लाइट कॉजेस एंटीबॉडीज टू बी स्टिमुलेटेड, thus increasing the resistance to bacterial disease or disturbances. Then leukocytes can also be increased, thus stimulating the capacity of the individual to overcome bacterial infection. अभी ये जो एंटीबॉडी का मतलब हम एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं तो जो निगेटिव बैक्टीरिया है उनको एक्चुअली मारना है, किल करना है, तो पॉजिटिव बैक्टीरिया लगेंगे। तो ये जो पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स होता है, एंटीडोस होता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, वैक्सीनेशन होता है, तो वही। तो एक्चुअली लाइट का जो यानी कि कलर थेरेपी का जो भी इफेक्ट है वो एक्चुअली एंटीबॉडीज की तरह काम करता है। एंड आपके जो भी निगेटिव बैक्टीरिया, मतलब इवन विद इन अ सिंगल डे एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंट काइंड के डिसीज वाले जो बैक्टीरिया है वो फॉर्म होते हैं बॉडी के अंदर। बट एवरी डे अगेन जो हमारे पॉजिटिव बैक्टीरिया, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हम जिसे कहते हैं, तो जो इनको हमारा जो इम्यून सिस्टम है एक्चुअली, तो वो कंटिन्यू इनके साथ लड़ता रहता है। एंड दैट्स हाउ जितने भी इवन कैंसरियस सेल भी फॉर्म होते हैं, बहुत सारे डैमेजेस भी होते हैं। तो दिन भर जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम खाते हैं, मतलब जो सारा जंक एंड ऑल व्हाट गोज इन एक्चुअली, तो रात को फिर उसका जनरली ये पूरा जो सिस्टम चलता है 2-3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास जो पूरा अंदर से ये सारी चीजें होती है ना, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो प्रोसेस एनहांस होता है, एक्टिवेट होता है, जो हमारे पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो और स्ट्रांग होने लगते हैं। यानी कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है जो ऑलरेडी लड़ रही है, मीन्स ऐसा कुछ नहीं है कि वो काम नहीं कर रही, ऑलरेडी सब कुछ प्लेस पे है, वो सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन इन जो एडिशनल ये जो थेरेपीज है उसको हम और अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो प्रोटेक्शन है वो और अच्छा बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स। तो ये इस तरह से एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स की तरह काम करता है। Then not only do we take in colored light through our eyes and skin, we also draw in light energy through a system of body energy centers known as chakras, which are directly linked to our nervous system. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आंखों से और स्किन से चक्र इसको कलर्स को इनहेल कर रहे हैं या फिर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमारे जो चक्रास है, हमारे जो अलग एनर्जी लेवल के जो बॉडीज है, एक्चुअली हम उनके थ्रू पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम लिंक है उनको हम स्टिमुलेट करके इन कलर्स को हम एक्चुअली एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सारे हो गए कलर्स के इफेक्ट हम पे, हमारी बॉडी पे, हमारे पूरे ओवरऑल सिस्टम पे। अब इसके बाद आता है फिलॉसफी ऑफ कलर। तो कुछ बिलीव्स के बारे में दिया है, जैसे हम बोलते हैं कि वी आर नॉट अ बॉडी बट वी आर अ सोल। फिर सोल ये कहाँ से आया है, तो सोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल एंड सन। तो सन ऑफ कोर्स है हमारा इंटरनल सन, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पे जो थर्ड आई है यहाँ पे एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मतलब इसके दो बोए के बीच में जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे वो सन रहता है, एंड दैट इज व्हाट इज स्पिरिट, दैट इज वी कॉल्ड सोल। तो एक्चुअली ये जो सन है दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ लाइट, है ना। तो क्योंकि ये लाइट है एंड लाइट के अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं। तो दैट्स हाउ दिस कंसेप्ट हैज कम अप कि वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर अ इवन नॉट अ माइंड बट वी आर अ सोल, एंड सोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सन एंड सोल, एंड दैट्स हाउ वी हैव फॉर्म। तो हम सिर्फ ये हार्ड मास, फ्लैश, मसल्स, बोन्स ये नहीं है, बट हम कहीं ना कहीं सोल है। अब ये जो अल्टरनेटिव थेरेपीज जितने भी हीलिंग थेरेपीज हैं वहां पे ये कंसेप्ट
चलता है, उस कंसेप्ट के ऊपर पूरा काम होता है। क्योंकि अगर हम वही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अगर खुद को सिर्फ हार्ड मास से बना हुआ एक बॉडी अगर समझते हैं, तो फिर एक्चुअली ये जो अल्टरनेट थेरेपीज है ना, वो बहुत ज्यादा उन पर्सन उस टाइप का मेंटालिटी होने वाले लोगों पे बहुत ज्यादा काम भी नहीं कर सकता है। गॉट दिस पॉइंट वेरी क्लोजली। इफ समवन फील कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सॉल वगैरह ये कुछ नहीं, स्पिरिट वगैरह कुछ नहीं है, मैं तो बस हार्ड मास से बना हुआ एक इंसान हूँ एंड इसको चलाने वाला कोई कुछ नहीं है, अगर ऐसे मानने वाले अगर कुछ लोग हैं, तो एक्चुअली for them it will take a lot of time to cure, because they are not even accepting the concept of soul energies and they are not aware of all these things. So जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं सिर्फ एक्सटर्नल चीजों पे, मतलब पहले तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है उस पे ही क्वेश्चंस अगर आ गए कि उनके लिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ साइंस है, तो फिर साइंस में भी ऑफ कोर्स प्रूफ है कि भाई वी आर सॉल एंड किस टाइप के, तो उसके लिए पूरे इंस्ट्रूमेंट्स है, सब कुछ डिसाइड हुआ है उसके। अभी देखो हाँ, कर्लियन फोटोग्राफी उसे कहते हैं, जो मैंने बोला था ना कि एक जो पिक्चर कैप्चर होता है जहाँ पे ऑरा दिखता है। तो अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगी कि हाउ पीपल हैव प्रूवन कि वी आर सॉल एंड वी आर नॉट अ यस। अपर्णा जी, यू हैव रेज हैंड। Yes, ma'am. I want to ask, जैसे अभी आपने बताया that if any of our clients were such that who do not believe in soul and all, so will color therapy work on that client? हाँ, तो आपको ना पहले उनको थोड़ा सा अवेयरनेस देना पड़ेगा कि ये किस तरह से काम करता है, और उनको जो समझ में आता है उनकी लैंग्वेज में आप उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये किस तरह से काम करेगा। Once they got convinced कि okay, it's scientific reason is there behind that, so of course it will work. But you need to tell them proper things and you have to actually educate them before using that therapy on them. It will work. इट्स नॉट लाइक, क्योंकि हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आंखों से देखने से ही होता है, इवन वो पहनते हैं तो जो स्टिमुलेशन है वो होना है, वो एनर्जी के जो भी मतलब उस कलर की जो भी रिफ्लेक्शन है वो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। बट इफ इट ऑल दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, एक्चुअली यू नीड टू एजुकेट देम। करेगा, काम करेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट बहुत निगेटिव है ना, उनके लिए मुश्किल हो जाता है एंड टाइम जो है ना वो ज्यादा लगेगा। Okay. ठीक है। And ma'am, is there any particular time, like for how long color therapy takes to work? It depends again on client to client, patient to patient and seriousness of that particular problem. बहुत छोटा सा है, आसानी से हो सकता है। माइंडसेट भी वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उनका बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत फ्लेक्सिबल है एंड जो बताया वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत ही जल्दी उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाए। जितना एज बढ़ता है ना उतने संस्कार जो है वो कड़े होने लगते हैं, मतलब वो चेंज, उस टाइप के लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, मतलब चेंज होना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि कोई नई चीज किसी ने बताई तो वो एक्सेप्टेंस आने के लिए बहुत ज्यादा वो स्टबर्न रहते हैं, है ना। तो उस टाइम पे फिर आपको जो सेशंस है, नंबर ऑफ सेशंस है, हो सकता है वो ज्यादा, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एक 8 से 10 सेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गए, मतलब इट्स मॉडरेट कि उतने सेशंस में एक्चुअली आपने उस पर्टिकुलर इट में टेक, अब आपको 8-10 सेशन जो है 1 महीने में लेने हैं, 2 महीने में लेने हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो कि किस टाइप से आप उनको घर पे कुछ असाइनमेंट दे रहे हो क्या या क्या कर रहे हो। बट इट टेक्स एटलीस्ट 8 to 10 सेशन। But if at all, if it's not getting cure, then you may enhance the limit. But simultaneously, if it's not working at all, in that case, you have to look forward कि why it's not working. Then you may change the type कि आपने किस टाइप का उनको बताया है, तो फिर आपको उसका थोड़ा सा स्वरूप चेंज करना, जैसे होता है ना कि डॉक्टर एक मेडिसिन देता है, अगर वो काम नहीं कर रही है तो फिर वो बदल के देते हैं, तो उस टाइप से फिर आपको अगर एक सर्टेन टाइप का जो प्रोसेस है जो आपने उनको दिया है वो अगर आपको लग रहा है कि उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आपको उसका जो टाइप है वो चेंज करना पड़ेगा। उसके साथ आप जो उनको बता रहे हो उसमें कुछ एड ऑन करना पड़ेगा या फिर कुछ निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा फिर उस टाइम पे आपको उनके साथ बैठ के काउंसलिंग करना पड़ेगा उनका, एंड अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे उनके प्रॉब्लम, एंड देन डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको और कितने सेशंस देने हैं। तो अगेन इट डिफर फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, क्लाइंट टू क्लाइंट। Okay, thank you, ma'am. Okay, thank you.
तो अभी हमने बात की थी सॉल के बारे में, हम फिलोसॉफी देख रहे हैं, तो फिलोसॉफी में अभी मैं फिलोसॉफी तो नहीं झाड़ सकती हूँ, तो इसलिए आपको साइंटिफिक ये बताती हूँ, रिसर्च जो प्रॉपर, अभी देखो जब भी कोई रिसर्च होता है तो उसका एक टोटल प्रोटोकॉल होता है कि कितने लोग, मतलब इसको सर्टन इतने पॉपुलेशन पे उसको यूज करना है, उसको इतना ड्यूरेशन लगे, ऐसे पूरा उसका एक सर्टन टाइप का पूरा प्रोटोकॉल होता है। एंड जब तक उसका, मतलब जैसे मैंने डॉक्टरेट किया है तो पीएचडी करने के लिए हमें पूरा, मतलब वो सर्वे करके उतने सैंपल साइज पे करके फिर वो सबमिट करना पड़ता है, फिर जाके वो अप्रूव होता है। तो वैसे ही ये भी रिसर्च किया कि जब उनको प्रूव करना था कि हाँ, वी आर नॉट flesh or just bones and skin and all, but we are a soul. At that moment of time, what these people does, उन्होंने क्या किया कि अभी जो क्रिटिकल पेशेंट्स है, जो बहुत क्लोज है कि अभी उनका डेथ होने वाला है, तो उनके उन्होंने सर्टन कंटिन्यूअस ये कर्लियन फोटोग्राफी से उनके पिक्स लेना शुरू कर दिया। एंड द मोमेंट व्हाट हैपेंस इज, हाउ दे प्रूव इज कि सारे जो लाइट्स है, मतलब कर्लियन फोटोग्राफी में पूरे जो ऑरा है ना वो दिखता है, लेकिन यहाँ पे एक सर्टन लाइट है जो पहले वाले एकदम मिली सेकेंड्स के पहले एक पिक्चर है जिसमें वो दिख रहा है, एंड द मोमेंट ही गॉट डेड, सडनली ये वाला यहाँ का जो पॉइंट जो चमकता है, दैट डिसअपियर लाइक एनीथिंग, मतलब पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गया, कैसे गया। तो ऐसे उन्होंने एक सर्टन अमाउंट ऑफ पेशेंट्स पे उसको इस कर्लियन फोटोग्राफी को ये किया। एंड अभी जैसे बाकी के जो कलर्स है, ऑरा के कलर्स है, तो क्योंकि ये फिजिकल बॉडी है, तो फिजिकल बॉडी होने की वजह से फिर वो धीरे 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 वो कम होते हैं, बाद में फिर वो डिसअपियर होते हैं। बट देयर इज समथिंग वेरी मैजिकल ओवर हियर कि सडनली वो है एंड द नेक्स्ट मोमेंट it disappear, and that's how they prove ki okay, we are not just flesh and all these bones and all, but yeah, we are a soul because something is there and now it has disappeared. तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और उस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया है कि ओके, सोल का एग्जिस्टेंस है एंड इस टाइप का लाइट हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करता है, जो हमारे दो बॉय आंखों के बीच में, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे पिट्यूटरी, मतलब पीछे है एकदम, यहाँ पे नहीं है, वो बीच में है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, वहां पे एक ब्रेन के अंदर एक पॉइंट होता है जहाँ पे एक्चुअली जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो स्टे करती है। तो दैट्स हाउ इट हैज प्रूव। तो ये जो है ये फिलोसॉफी हुई। अब ये फिलोसॉफी मैंने आपको अभी ये एक्सपेरिमेंट बताया कि हाँ ये फिलोसॉफी तो है, लेकिन इसको भी साइंटिफिकली प्रूव किया गया है, एंड उसके बेसिस पे हम कहते हैं, जो भी हम हीलर्स है, जो हम थेरेपिस्ट है, तो उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे काम करता है। तो जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा स्टबर्न है, जो ये सारी चीजें मानने पे यकीन नहीं करते हैं और, तो उनको आपको थोड़ा सा educate करना पड़ेगा, and on the basis of that actually you have to prove that how this energy system and all works, and that's how actually you are going to give them results. So in this way this philosophy works. तो थोड़ा सा भी फास्ट बढ़ना पड़ेगा क्योंकि we have already crossed the time limit. फिलोसॉफी में लास्ट इस पे आते हैं, क्या है, मेनी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल व्हिच इन्वॉल्व स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पुअर डाइट, negative thoughts and actions, and these are things we need to change for ourselves. Therapists are there to help us find out what areas in our life need to change. तो मैक्सिमम जितने भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में है वो तो यही सारी चीजें हैं कि हम लाइफस्टाइल जो है वो गलत तरीके से हम उसको एस्टेब्लिश कर देते हैं, उसकी वजह से फिर बाद में हमें वो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पहले तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। देन कलर इज पर्टिकुलरली गुड फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एरियाज इन आवर लाइफ एंड हेल्पिंग अस मेक द नेसेसरी चेंजेस। तो इवन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स एंड ऑल वो भी अलग अलग कलर के कुछ क्रिस्टल्स एंड ऑल बताते हैं। तो इवन या क्रिस्टल थेरेपी भी हमारे पास है, क्रिस्टल थेरेपी से भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो कलर थेरेपी क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में भी यूज हो सकती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी को अगर आपको स्टिमुलेट करना है तो उस टाइप का आपने क्रिस्टल बता दिया उनको पहनने के लिए, चाहे गले में पहनो, हाथ में अंगूठी में पहनो, लॉकेट में पहनो, कैसे भी आप बैंगल ब्रासलेट करके पहन सकते हो। तो उस पर्टिकुलर एनर्जी को अगर आपको वाइब्रेशंस में लाना है तो उस टाइप के चेंजेस आप करवा सकते हो। किस तरह से लेके जाना है तो वो वे आप कुछ भी रख सकते हो।
तो ये हमने ऑलरेडी देखा है किस तरह से इम्बैलेंस बैलेंस हो रहा है कलर से। तो आगे बढ़ते हैं, अभी सेटल्ड बॉडीज के बारे में हम देखेंगे। तो देखो ये जो है फिजिकल बॉडी तो लास्ट में आता है छोटा सा, लेकिन उसके बाहर कौन कौन से है, तो एथरिक बॉडी है, देन इंटरफेस होता है जो एथरिक और इमोशनल बॉडी के बीच में होता है, फिर आती है एस्ट्रल बॉडी, फिर आती है मेंटल बॉडी एंड लास्टली आती है सोल। तो ये पूरा मतलब इतने लेयर्स होते हैं, फिजिकल बॉडी लास्ट में आता है। तो ये लेयर्स के थ्रू ही सारी एनर्जीज जो है वो एंटर करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये मेजर लेयर्स है। अब एक एक बॉडी को हम देखेंगे क्या होता है। तो एक मिनट, वी कुड टेक द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस टू रिप्रेजेंट द फिजिकल बॉडी। अब छोटा सा, सबसे छोटा जो इसमें छोटा हमारे लिए तो सबसे बड़ा फिजिकल बॉडी है, लेकिन एग्जैक्टली फिजिकल बॉडी क्या है, दिस इज द बॉडी ऑफ मैटर, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं एंड फील कर सकते हैं। The majority of us are aware of the physical via 5 senses, है ना, and internal neural pathways. It has mass, texture and sense of solidity. तो ये तो सभी को पता है, इसलिए ये थोड़ा सा हम आगे लेके जाते हैं। फिजिकल बॉडी के बाद आता है एथरिक बॉडी। तो एथरिक बॉडी क्या है, इज अ डुप्लीकेट ऑफ द बॉडी फिजिकल with which is channels of information, energies and stimuli into and within. Some refer to this energy as a life force. Etheric body को life force भी कहते हैं। It is integrated into and throughout the body physical and remains for a period of time after the part of physical have been removed. For example, amputation of limbs or organs or cutting away part of the plant or leaf, इसे phantom leaf effect भी कहते हैं। तो समझो एक आधा पार्ट हमने बॉडी का निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं थ्रू एथरिक बॉडी। और देखो एक एक्सपेरिमेंट, मतलब किस तरह से बॉडी फिर दूसरे, अभी जैसे लिम्ब ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल वो सारी चीजें भी होती है। तो एक गर्ल का मतलब ये किस तरह से हुआ, उनको भी, डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आ रहा था। तो एक टीनेजर गर्ल थी जिसका एक लिम्ब जो है उसका ऑपरेशन हुआ, एंड एक आदमी का काफी एज वाला जो इंसान है उसका हाथ उनको ट्रांसप्लांट किया। अब मेडिकल साइंस भी अभी तक ये ढूंढ रहा है ये कैसे हुआ, लेकिन एक्चुअली हर बॉडी, बिकॉज शी वाज इन हर टीन, सो हर बॉडी वाज ग्रोइंग, तो ऑटोमेटिकली वो जो एक रफ टाइप का आदमी का हाथ है जो उस गर्ल को लगा था, ऑटोमेटिकली उसका जो टेक्सचर है उनकी बॉडी में जाने के बाद वो स्मूथ होने लगा, उसमें चेंजेस आने लगे। हालांकि उसका इधर का हाथ काफी छोटा और फिर दूसरा हाथ ऑफ कोर्स बड़ा था, क्योंकि वो किसी और इंसान का एंड दष्टपुष्ट मतलब मस्कुलर पर्सन था, उसको हाथ जोड़ा गया था। बट एक्चुअली एंड वेरी सरप्राइजिंगली वो स्मूथ होने लगा, उसका टेक्सचर चेंज होने लगा, एंड एक्चुअली इट हैज स्टार्टेड मैचिंग विथ हर बॉडी कलर एंड ऑल। तो इतना भी मतलब इस तरह से एक्चुअली बॉडी जो है फिर अडॉप्ट होने लगती है, इस तरह से सारी चीजें एक्चुअली काम करती है, जहाँ पे फिर मेडिकल साइंस भी सोचते रहता है माय गॉड ये कैसे हुआ। तो या एथरिक बॉडी इज समथिंग व्हिच वर्क्स इन दिस ऑल काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, जहाँ पे भी गैप है उसको फुलफिल करने का काम हमारी एथरिक बॉडी करती है। इमोशनल बॉडी क्या है, तो इमोशनल बॉडी मेंटल एटीट्यूड आर अफेक्टेड बाय आवर एक्सपीरियंसेस, the greater the emotional links, the stronger the learning or memories of the experiences. अब एक्चुअली हमारी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं ये स्टिमुलेट होती है हमारे मेंटल एक्सपीरियंसेस से। तो क्या एक मेंटल एक्सपीरियंसेस हम जैसे किसी का बचपन अगर बहुत ज्यादा प्लीजेंट है तो वो एक्चुअली आगे जाके प्लीजेंट काइंड का पर्सनालिटी बनता है। अगर बचपन से बहुत ज्यादा सुनते आ रहे हैं या फिर प्लीजेंट बचपन नहीं है, एक्चुअली उसी टाइप की पर्सनालिटी चाहे तो वो दुखी टाइप का इंसान बनेगा या फिर वो क्रिमिनल बन जाएगा, इतना नेगेटिव हो जाएगा कि लोग उसको अच्छे नहीं लगेंगे। तो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हाटएवर वी आर एक्सपीरियंसिंग इन आवर लाइफ, एंड दैट्स हाउ दिस इमोशनल बॉडी वर्क्स। तो ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन आता है मेंटल बॉडी। तो थॉट क्रिएट वाइब्रेशंस और रिपेल्स विद इन द मेंटल बॉडी। तो ऑफ कोर्स जो सारे वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं थॉट का ही, थॉट प्रोसेस ही है हमारी। तो मेंटल बॉडी इज नथिंग बट आवर थॉट सिस्टम, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड। अब मेंटल बॉडी के क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको डायग्राम दिख रही है तो यहाँ पे रेप्टिलियन ब्रेन, मतलब हमारी जो मेन 3 टाइप के, अभी ये न्यूरो वाला जो है एक्सटर्नल पार्ट है जो अभी डेवलप हुआ है नए से, एंड आगे जो भी जनरेशन आएंगे ब्रेन का साइज और बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा जो अंदर का है वो रेप्टिलियन ब्रेन है, फिर लिम्बिक सिस्टम आता है,
उसके बाद मतलब उसको हम मैमलियन ब्रेन भी कहते हैं, एंड जो ऊपर वाला है वो न्यू मैमलियन है। तो न्यू जो पार्ट है एडिशनल जो बाहर का सिस्टम दिख रहा है ना, वो नए से डेवलप हुआ है, जो हमारी आज की जनरेशन है उसमें वो दिखता है। एंड पहले से अगर स्टडी करते 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 आए तो वो जो ब्रेन है वो ब्रेन डेवलप हुआ है, एंड आज जाके उसकी डेवलपमेंट ऐसी हुई है। तो अब इसके अगर हम एस्पेक्ट्स देखेंगे तो सब डिवाइडेड different aspect of mental body subdivided in physiology, then psychology, and also esoteric understanding. The mental body is frequently seen as being comprised of differing levels. तो उसके differing levels हमने already देख लिए। उसमें क्या क्या होता है? Responses of mental body then manifest physically as symptoms and sensation. Then basic function is to keep us safe by learning from the mistake. हम जो भी गलतियां कर रहे हैं उससे हम सीखते हैं, फिर हम वो गलतियां नहीं दोहराते हैं, and that's how we learn, है ना? हम बोलते हैं ना हमने कुछ सीख लिया, तो हम मिस्टेक्स करके ही सीखते हैं एक्चुअली। तो सीखने की फर्स्ट स्टेज जो है वो मिस्टेक ही है। नाउ नेक्स्ट इज एस्ट्रल बॉडी। तो अभी देखते हैं क्या क्या बाकी है। एस्ट्रल बॉडी, स्पिरिचुअल लेवल, कॉजल बॉडी, द सोल। ठीक है, 3-4 स्लाइड्स है, चलेगा ना? Should I continue? Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay, so astral body क्या है? Astral body, many people consider the astral body to be or to encompass the emotional body. हाँ, हमने इसके पहले emotional body भी देखा था। तो astral body है जो है वो encompass करती है आपकी emotional body को। In the framework dosing of health courses, it is acknowledged in its own right. अलग से उसका acknowledgement है actually astral body का, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ emotional body का part है। It is more developed in culture where reincarnation and historic beliefs are common and accepted. जो past life regression and all है, उसमें actually astral body का बहुत बड़ा रोल आता है, जहाँ पे हम travel करते हैं ना, मतलब soul अगर travel कर रही है एक body से दूसरे body में, तो कहीं कहीं उसकी यादें जो है, मतलब जो पहले का अपना रीइंकारनेशन जो है, जो पास्ट लाइफ है, उसकी कुछ मेमोरीज ऐसी है जो नहीं जा रही है, वो सारी स्टोर एस्ट्रल बॉडी में हो रही है एक्चुअली। तो अगर कुछ मेमोरीज है जो वाइप अप नहीं हो रही है, उसकी वजह से फिर इस लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर एक्चुअली रोल आता है एस्ट्रल बॉडी का। It acts as a protection from past life memories which are held in the causal body. तो of course astral body protect करती है, मतलब जब हम बहुत न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, तो एक्चुअली जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज है वो होती है। जो भी बेबी हंसते हैं, रोते हैं ना, मतलब अभी तक तो कुछ सेंसेशन नहीं आया, फिर भी वो हंसते हैं, कभी रोते हैं, खुश होते हैं, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, तो लास्ट जो लाइफ जी के आए हैं उसकी मेमोरीज तब तक रहती है। और वो मेमोरीज तब तक रहती है जब तक वाचा नहीं आती, मतलब हम जब तक बात करना नहीं सीखते हैं तब तक वो जो सारी मेमोरीज है एक्चुअली रहती है एस्ट्रल बॉडी के अंदर, एंड फिर धीरे धीरे वाइप अप होना शुरू हो जाती है। तो इस लाइफ में जब हमें वाचा आती है, यानी कि हम जब बोलना शुरू करते हैं, तब तक फिर जो प्रीवियस लाइफ है उसकी सारी मेमोरीज जो है वो डिस्ट्रॉय इन द सेंस कहीं ना कहीं तो है, बट हमें सिर्फ उसका जो मेमोरी रहता है वो हमें याद नहीं है कि एग्जैक्टली हमारे साथ कहाँ क्या हुआ था एंड हम कौन है। तो फिर हम नए आइडेंटिटी के साथ जीना शुरू करते हैं। स्लोली बेटा, स्लोली। Then next is spiritual level, the development of a pathway to the soul, the acknowledgement of ourselves as conscious being and the connection with the creative power greater than ourselves. तो ये जो spiritual level है, highest level, जहाँ पे मतलब of course हम as a soul consider करते हैं अपने आप को, एक energy consider करते हैं, and this is what is physical thing, बट इसको चलाने वाली जो एनर्जी है वो सॉल है, तो वो होता है स्पिरिचुअल लेवल। एक्चुअली वो हायर इस पे आ जाता है, फिर आपके जो सातों एक जो बाहर वाला चक्रा है वहां उस लेवल पे आ जाता है। Then causal body carries the past life experiences of numerous incarnations so that they have an implication on the current life in the physical form. It is molded and changed by our attitude to life's difficulties and opportunities. तो causal body में भी फिर incarnation से related जो memories है वो सारी चीजें भी causal body में भी होती है, astral body में भी है। तो यहाँ पे मतलब अगर कुछ impact हो रहा है तो फिर हमें उसको project करना पड़ेगा, तो ये PLRT में वगैरह वो सारी चीजें consider होती है। Then lastly, soul. There are many names for this level, but it is said to be our true self without the contortion of life's emotional, mental, ego or personality effects. Past, present and future does not exist separately. Actually, वो separate नहीं है, जो है वो current moment है. The divine spark within all of us
God particle is the higher self. तो exactly higher self क्या है, तो वो present है, and यहाँ पे अलग अलग नहीं है कि कल क्या होने वाला है, कल क्या हो चुका है, जो कुछ है वो आज है, अभी है. That is what is actually higher self. So that's it. This much for today's session. I hope you must have got some good insights today. You might have learned new things. If at all you are having any doubts or queries, you may ask. Thank you so much from my end. Yes, anyone wants to ask any questions, doubts? Otherwise, we may conclude. Ma'am, I want to ask, in color therapy, do we also use darker colors like black and brown, because people mostly consider it as negative, negativity. So that color is also having some of the properties. ऐसे नहीं है कि उसको, हाँ, उसका बहुत सारे लोग उसको निगेटिवली लेते हैं, बट अगर उस टाइप की एनर्जीज की जरूरत है तो हम उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं. फॉर अस कलर is just a kind of energy. So what kind of energy that particular person is required, we have to use it. So of course उसको as a therapy में हम separately use नहीं करते हैं, लेकिन उसको use कर सकते हैं. As a therapist, I am telling you कि we could use brown color also, black color also. हाँ, recording मिल जाएगा भावना जी. मैम, I have one question, like Alzheimer disease है अगर person को, so उसमें color कैसे help करेगा, and how can we motivate the person to do the colors? कौन सा disease बोला आपने? Alzheimer disease. अच्छा, तो अभी देखिए उस पर्टिकुलर डिसीज का जो कॉज एलिमेंट्स है ना, मतलब वो कहाँ से आ रहा है, एंड उसके इमोशंस वो चेक करने पड़ेंगे, उसके रिलेटिव इमोशंस कौन से हैं, उसके बेसिस पे आपको कलर उनको सजेस्ट करना पड़ेगा. अब ये वर्कआउट वैसे ही होता है, डिसीज कोई भी हो, हर डिसीज पे ये काम करेगा. जितने मेंशन किए हुए हैं ना, वो सारे डिसीज पे वो काम करेगा, लेकिन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी. They have to follow their proper diet. If at all they are having some kind of medication and all, you may continue that. But what you have to do is you have to find out the mental. हर देखो, हर जो अपना organ है ना, उसमें अगर पर्टिकुलर प्रॉब्लम आता है तो उसकी एक मेंटल सिचुएशन होती है, एक पर्टिकुलर काइंड की इमोशन होती है जिसके साथ वो अटैच होता है. तो उस डिसीज का आपको वो इमोशन देखना पड़ेगा, एंड उस इमोशंस के लिए रिक्वायरमेंट कौन से कलर की है वो देख के फिर वैसा उनको सजेस्ट करना पड़ेगा. तो इट विल वर्क, बट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी. तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूम के जो कलर्स है उसमें आप सर्टेन चेंजेस बता सकते हो, वो जो कलर वेयर करें उनमें आप सर्टेन चेंजेस बता सकते हो, एंड अपकमिंग लेसन्स में आप अलग अलग टाइप भी सीखोगे कि आप किस टाइप से सेशंस जब देते हो तो उस टाइम पे आप किस तरह से कलर को प्रोजेक्ट करते हो, तो वो भी आप सीखोगे. तो दिस इज हाउ यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, एंड पर्टिकुलर वाइब्रेशन यू हैव टू गिव फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ कलर. तो आप मुझे मैसेज करके रखो, मैं देख के बताती हूँ आपको, अगर पर्टिकुलर कलर से रिलेटेड मुझे मिलता है तो आप आई गिव इट टू यू. Okay, thank you, ma'am. Okay, thank you. Ma'am, skin diseases like dandruff and psoriasis, for this also the color therapy will work. उसमें डैंड्रफ के लिए तो कलर थेरेपी आई डोंट थिंक, थोड़ा सा क्लीनलीनेस एंड केयर करने से वो जा सकता है. एक्चुअली जब स्किन ड्राई हो जाती है तो उस टाइम पे वो सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस, बट वहां पे उस स्किन को आप प्रोजेक्ट कैसे करोगे ना कलर से, अगर करना भी है, इन केस करना है, तो शैम्पूज का जो कलर हम अप्लाई कर रहे हैं, ऑयल्स का जो हम कलर अप्लाई कर रहे हैं, उसके थ्रू ही करना पड़ेगा, है ना. तो अल्टीमेटली फिर वही हुआ कि वहां की स्किन को ट्रीट करना है तो कहीं ना कहीं हमें ये टाइप के जो भी हम क्लीनलीनेस के लिए, हाइजीन के लिए जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उसके थ्रू ही हम उसको ट्रीट कर रहे हैं. तो हाँ, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं उसके ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे सर्टेन काइंड ऑफ हाइजीन में आल्सो बी वेरी यूजफुल रादर देन कलर थेरेपी. Okay, thank you, ma'am. Okay, thank you. तो कंक्लूड करें, ये और कोई क्वेश्चन है? टू पार्टिसिपेंट्स हैंड. यस, किसको पूछना है? सुदीप बोल रहा था मैं. हाँ मैम, ये जो कलर थेरेपी में जो कलर्स का जो कॉन्सेप्ट है जो यूज करते हैं डिजीज के लिए, हाँ. क्या ये प्राणी हीलिंग में जो कलर यूज करते हैं, कलर पाना, उसी सेम प्रिंसिपल है या अलग रहता है कुछ? अभी क्या है, हर टाइप के हीलिंग में अपने जो 7 चक्र है ना,
उसके कहीं ना कहीं कलर्स के बैलेंसिंग एंड ऑल वो होता ही है। तो कहीं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, कहीं वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, लेकिन थेरेपीज आर टोटली डिफरेंट। तो आई डोंट नो अबाउट प्राणिक हीलिंग, मुझे बहुत ज्यादा उसके बारे में पता नहीं है, तो आई कांट टेल यू कि वो सिमिलर है या नहीं है। बट द थिंग इज मेजरली जो अल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज है वो 7 चक्रा के जो 7 कलर्स है उसके बैलेंसिंग पे ही काम होता है। तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है सिमिलर हो और कहीं ना कहीं उसके डिफरेंसेस भी होंगे। तो टेक्निक्स मेथड्स डिफरेंट होते हैं, बट जनरली जो पर्पस है, जो कॉज है, वो सिमिलर ही होता है कहीं ना कहीं अल्टरनेट थेरेपीज में। तो वो ये हो जाता है, अचीव हो जाता है। बट या ऑफ कोर्स मेथड्स विल बी डिफरेंट। थैंक्स मैम। इसमें कलर थेरेपी में क्रिस्टल्स भी यूज करते हैं क्या मैम? क्रिस्टल्स भी यूज होता है, हाँ। जैसे मैंने बताया, आपको मेंशन किया था मैंने कि अगर सर्टन काइंड ऑफ कलर की एनर्जी, जैसे फिर से अगर प्रॉस्पेरिटी का लेना है तो अगर आप ग्रीन कलर का क्रिस्टल्स उनको सजेस्ट करते हैं, उनको प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करनी है लाइफ में, तो वो अगर मतलब थोड़ा सा हीट की तरफ, मतलब बॉडी बहुत ज्यादा कूल हो चुकी है, थोड़ा हीट की तरफ जाना है, तो रेड ऑरेंज उस टाइप के कलर्स हम बता सकते हैं। मैम इज कलर थेरेपी बेटर और मैग्नेट थेरेपी इज बेटर फॉर कंप्लीट क्योर? कोई भी थेरेपी को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा बेटर एंड क्या उस टाइप का पर्सनालिटी कौन सा है, डिसीज कौन सा है, उसके बेसिस पे कहीं कुछ थेरेपीज बहुत अच्छे से काम करते हैं, कहीं उसके कंपैरिजन में दूसरे काम करेंगे। मतलब एक ही पर्टिकुलर पेशेंट के लिए अगर आप कलर थेरेपी यूज करो और मैग्नेट थेरेपी यूज करो, तो हो सकता है एक को कलर थेरेपी से यूज होगा और सेम डिसीज के लिए दूसरे पे मैग्नेट भी काम करेगा। तो ऐसे कुछ नहीं है कि ये बेटर ये बेटर, पर्सन टू पर्सन भी वैरी करती है उसके जो मेथड्स है। ठीक है, सॉरी मैं वो चैट वाले का आंसर दे दिया, यहाँ पे कुछ और चल रहा था। हाँ यस मैम। मैम पीसीओएस प्रॉब्लम कलर थेरेपी से हील हो सकता है मैम? कौन सी प्रॉब्लम? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम प्रॉब्लम हो सकता है ना, उसको भी हम कर सकते हैं। I have been suffering from this from quite long. अच्छा, तो वो थेरेपीज होते हैं, ठीक होता है, वापस से रिअकर होता है, अभी फिर से दैट प्रॉब्लम इज अकरिंग। अच्छा, So I sit in meditation, I focus on my root chakra, my sacral chakra, because वो lower chakras के related है, but somewhere that fully relief is not there, self healing नहीं हो रहा है उतना मैम पूरा, और I think so some more therapy is required, so like नहीं थॉट प्रोसेस में एज कितना है? 38 मैम। अच्छा 38 है तो होना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं है, एज नहीं है। तो थोड़ा सा ना उनका बाकी की चीजें देखो कि क्या जो है जो अलाउ नहीं कर रहा है मतलब जो हीलिंग है वो कहाँ पे ब्लॉकेज ला रहा है ना, कॉज शायद डिफरेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि थेरेपी काम नहीं कर रही है, लेकिन कुछ और हो रहा है जिसकी वजह से हीलिंग एक्चुअली अचीव नहीं हो रहा है। तो वो थोड़ा सा आपको कुछ सेशंस, आपको ऐसा एक आधा क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा जिससे आपको उनके बाकी के जो प्रॉब्लम है ना वो अंडरस्टैंड होंगे, जिसकी वजह से ब्लॉकेज समझ में आएगा। तो ब्लॉक क्या कर रहा है, हीलिंग क्यों नहीं हो रहा है, उसको अंडरस्टैंड करके आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर चेंजेस लाओ, जो मेथड यूज कर रहे हो उसको थोड़ा सा अलग वे से मेरे को बोला गया पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैम, because this problem comes again and again as recurring. तो रिग्रेस करके देखो ना थोड़ा सा सेशंस। When I go into that meditation or that thing, something stops me from going into that life. तो एक्चुअली अगर स्टॉप कर रहा है ना तो फिर मत जाओ, उसके पीछे भी रीजन है ना बाबा, क्यों याद नहीं आता है, तो उसके पीछे भी रीजन है ना। हो सकता है कि वो पता होने के बाद और कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किसी का रिग्रेस होता है, किसी को नया प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाता है। वही होता है, नहीं कर रहा है तो स्टॉप इट। ऐसे एंटर हो रहा होता है जैसे लगता है कि कोई वापस से पुल बैक कर रहा है कि मत जाओ, कुछ हो जाएगा, फिर मत जाओ ना, क्यों जाना चाहते हो? No, like other meditators and all the senior grandmasters, that they are telling ki this is a chronic disease, so it might be related to the past life regression. So but I'm not able to do that past life regression. मेरे को कोई ना कोई पुल करता है मैम। Don't go, something is stopping. मत जाओ फिर, एक्चुअली कुछ that thin line is there. The moment I'm entering, I get like fear बोल दीजिए या कुछ है कि बैक आउट हो जाते हैं, नहीं जा पाती हूँ। Okay. मैम if color therapy can help or you can help me. आपका प्रॉब्लम जो है आप मुझे अलग से मैसेज करके रखो, मैं थोड़ा सा देख के आपको सजेस्ट करती हूँ, ठीक है? ओके चलो, टेक केयर।
फिर कंक्लूड करें आज का सेशन? Yes, ma'am. Very Okay. nice and informative session, ma'am. थैंक यू। चलिए, थैंक यू ऑल मुझे ऑफ एक यू। बात आपको पूछनी थी। ओके, ये जो नागिन हो जाता है, अच्छा, इट इज अ स्किन डिजीज, जो रेडनेस हो जाती है, तो उसके लिए कलर थेरेपी कुछ काम आती है क्या? एक्चुअली ये स्किन ये डिजीज है। हर्पिस बोलते हैं ना, वो हाँ, आई हीट नो। की वजह से। हाँ, तो थोड़ा सा ब्लू जो है कूलनेस, मतलब ज्यादा हीट की वजह से अगर हो रहा है तो थोड़ा ब्लू का यूज करो। मतलब बॉडी का जो एक्सेसिव टेम्परेचर है ना उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी तो जो रेगुलर हाँ। ट्रीटमेंट चल रहा है उसको रखो। इंक का यूज करो। ये जो ऊपर के हाथ है ना वहां पे थोड़ा सा इंक अप्लाई हाँ। करो, ब्लू वाला इंक वो अप्लाई करो। देन ब्लू कलर के थोड़े कपड़ों में जो कलर है उसका ब्लू यूज करो। अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ा वॉल में वगैरह ब्लू कलर का यूज करो ज्यादा से ज्यादा। ब्लू से ये जो है ना हीट जो है मिनिमाइज होती है। तो कूल जितने भी कलर्स है, कूल का जहाँ मतलब अगर हीट की वजह से हो रहा है तो कूल टाइप के जितने भी है ना वो देख सकते, ब्लू सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो ब्लू का यूज करके देखो, हो जाएगा थोड़ा। इवन खाने में अगर कहीं पे हो सकता है ब्लू कलर, हम जो खाना खाते हैं ना तो जैसे जामुन वगैरह है उसमें भी थोड़ा ब्लू का शेड आ ही जाता है। तो जैसे वो पर्टिकुलर कलर जो है कंप्लीटली, मतलब हम जो उसे भी कलर थेरेपी कहते हैं, जो हम खाते हैं ना तो उसमें वो पर्टिकुलर कलर, अगर हमें येलो की जरूरत है तो येलो कलर हम खाए, रेड की जरूरत है तो रेड खाए। तो वो जो पर्टिकुलर कलर है फ्रूट्स में वगैरह यूज किया तो भी उसका इम्पैक्ट होता है। तो खाने में थोड़ा सा कोशिश करो, फिर बाकी कलर ये अप्लाई करने में एंड पहनने में वो थोड़ा यूज करने की कोशिश करो ब्लू का। ओके मैम, ओके ओके, ठीक है। द सेशन वाज वेरी नाइस। थैंक यू। चलो ये फिर। वो आंसर टू मी कोच। रेड कलर पहनती नहीं हूँ, रेड कलर पहनूंगी रिलेटेड टू रूट चक्रा, इट माइट हेल्प आउट। देन रेड कलर फूड में भी, ये दो चीज मैं नहीं कर रही। सी मैम, विदाउट आस्किंग व्हेन वी शेयर द एक्सपीरियंस, थैंक यू भावना मैम फॉर रेजिंग दैट क्वेश्चन। इट्स लाइक two questions are answered, I'm getting an answer like ऑटोमेटिकली आंसर हो yeah. जाता है। Thank you राइट so राइट, much. थैंक यू। चलो देन, टेक केयर, बाय बाय। Thank you. लेट्स बाय। कंक्लूड। ओके, Thank you.